Hello everybody, welcome to PCA. Hope you people are fine. So before coming to today's topic, recently State Legislative Assembly elections were held in 4 states and in a UT. I hope you guys are following the news, and although in 3 states you do not have to remember the name of the CM and the name of the political party which is in power over there, because in Kerala, in West Bengal and Assam, the same political parties which were ruling before this election have also got the power now. But you have to keep in mind, जो पावर चेंज हुआ है, जो गवर्नमेंट चेंज हुई है इन तमिलनाडु में, तमिलनाडु what is the name of the ruling party in Tamil Nadu now and who is the chief minister. ठीक है, आपको as a student of political science you need to see these things and you need to remember these things. और पुडुचेरी में भी गवर्नमेंट चेंज हुई है and new government is over there and there will be new CM. ठीक है, you have to see which party is now a ruling party in Puducherry and who is the CM. ठीक है, because as a students of political science we need to look at these things and we need to remember these things. So coming to today's topic, yesterday we have done the introduction to the executive, wherein I have told you the difference between political executive and permanent executive. ठीक है, and then we came to know parliamentary form of government and presidential form of government. Because why we discussed parliamentary form of government and presidential form of government, because we had to arrive at presidential executive and parliamentary executive. ठीक है, so let's have a brief relook on yesterday's टॉपिक. हमने कल पढ़ा था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ठीक है, सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हिज आर हर मिनिस्टर्स who are in charge of the different departments and different ministries. And permanent executive क्या होता है? Permanent executive is basically the government employees in the administrative machinery of the state. ठीक है, for example जो हमारे IAS officers है, KS officers, they are permanent. ठीक है, वो कोई political post नहीं है, they are permanent, they are permanent executive. ठीक है, because on the basis of their qualification, because they have went through the examination process and they have hence became permanent executive. जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी. ठीक है, सो आते हैं आज की टॉपिक की तरफ. आज हमें डिस्कस करना है जो देखिए एग्जीक्यूटिव के इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इफ वी ट्राई टू लुक एट एग्जीक्यूटिव थ्रू वेरियस पर्सपेक्टिव्स, एक तो हमने कल डिस्कस किया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम विच यू हैव इन प्लेस. फॉर एग्जाम्पल जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, वायर इन देयर इज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है. सो देखते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या होता है. As far as parliamentary executive is concerned, parliamentary executive में क्या होता है? नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको कल कहा नॉमिनल, अगर हम इंडिया में भी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे इंडिया में नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट. और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है ये होता है हेड ऑफ द स्टेट, फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. और इसी तरीके से पीएम इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. As far as parliamentary executive is concerned, all executive actions are taken in the name of the president. ठीक है, however
द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट खुद नहीं करता है, बट ही हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, एंड 42nd constitutional amendment has made it obligatory, or I would say binding upon the president to accept or to accept the aid and advice of the PM and the council of ministers. So what you have to what you need to try to understand as far as the parliamentary form of government is concerned, देखिए प्रेसिडेंट है जो कि नॉमिनल है, बट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम, बट ही हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को कहेंगे, एंड प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट दैट, एंड प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दैट एडवाइस। ठीक है, अब जो यहां पे, तो वी कैन से कि रियल एग्जीक्यूटिव है पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और पीएम होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, सो दे आर रियल एग्जीक्यूटिव, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सिंस पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, they are also the members of legislature. In parliamentary system there is basically double membership in the sense, जो council of ministers होते हैं, एक वो होते हैं members of the legislature, दूसरे होते हैं वो members of the council of ministers। ठीक है, that is why, तो PM, since PM and the council of ministers are the members of the legislature, either लोकसभा के member होते हैं या राज्यसभा के member होते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम होती है। सो इफ द लेजिस्लेचर, who are basically the representatives of the people, if they ever felt that the PM and the council of ministers are not acting as per the wishes of the people, as per the wishes of the electorate, they can pass a no confidence motion against them and they have to resign, और उससे क्या, एग्जीक्यूटिव को रिजाइन करना पड़ेगा। At the same time, PM and the Council of Ministers are responsible or answerable to the legislature for their all ill actions and policies. ठीक है, it is not like if we see the presidential system, या wherever there is presidential executive, वहां पे क्या होता है, real head of the state भी, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों क्या, कौन होता है, प्रेसिडेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट, और द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट along with his secretaries is the real executive of the country। ठीक है, is the real executive of the executive branch of the government। ठीक है, एंड यहां पे क्या है, ही इज, जैसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बट यहां पे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज independent of the legislature। हाँ, and even executive, even president and his secretaries are not the members of the legislature। ठीक है, so parliamentary form of government में
there is a coordination, there has to be a coordination between executive and the legislature. ठीक है, executive is responsible to the legislature. Since executive PM and the Council of Ministers, being the members of the legislature, are responsible to the legislature for all their elections and policies. And on the other hand, if the legislature ever felt that the executive, PM and the Council of Ministers are not doing the things as per the wishes of the electorate, as per the wishes of the legislature, then they can pass a no confidence motion and they have to resign. And hence, executive has to resign. But on the other hand, if we try to look at presidential executive, wherein real executive authority is vested in the president, and he exercises this real executive authority with the help of his secretaries. But जो executive होता है presidential form of government में, executive is independent of the legislature. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल। और जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव आपको कहां मिलेगा, यूके में मिलेगा, ब्रिटिश जिसे हम कहते हैं इंडिया में मिलता है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव आपको कहां पे मिलेगा, यूएसए में, ब्राजील में। ठीक है, देखिए जो हमने कल पढ़ा है political executive and permanent executive, that is existing across world, that is existing in each country. Political executive भी है, permanent executive भी है, but as far as the parliamentary executive is concerned and presidential executive are concerned, ये दोनों डिपेंड करते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके स्टेट में है, आपके मुल्क में है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देन देयर विल बी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट हु इज जस्ट द नॉमिनल, और PM and the Council of Ministers in real sense exercise the authority. ठीक है, and in real sense exercise the powers. तो presidential executive में it is the president. ठीक है, president with the help of with the assistance of his secretaries exercise the power. ठीक है, so जैसे कि नॉमिनल या हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट नेम्स से पुकारा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखेंगे, हाँ, in different countries there are different names for the heads of the state or heads of the government, but in most of the countries almost same ही है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, PM। सो एज हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड है, फॉर्मल हेड है, टिट्यूलर हेड है, या जिसे हम कहेंगे डिजोर हेड है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट PM है, which we can term as de facto head। ठीक है, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जर्मनी में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को हम कहते हैं चांसलर। आपने सुना होगा न्यूज में, जर्मन चांसलर विजिटेड इंडिया। ठीक है, वो जैसे यहां पे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस है, उसी तरीके से जर्मनी में जर्मन चांसलर का स्टेटस है। ठीक है, जर्मन चांसलर। इफ वी लुक एट जापान, in Japan there is a parliamentary form of government, and Japan's head of the state is known as emperor।
एम्पेरियर, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहां पे भी होता है पीएम ही, ठीक है। और अगर हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ये जो मैंने कहा इट इज, और इफ वी सी इन द यूके ब्रिटिश, वहां पे क्या होता है, क्राउन होता है हेड ऑफ द स्टेट, किंग या क्वीन, ठीक है, और पीएम होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। These are basically the different names, ठीक है, for use it for the head of the state or head of the government in different countries, ठीक है। और अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे विच इज एग्जिस्टिंग इन यूएस, तो वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो माय डियर्स, इंडिया में जो ऑन द वन हैंड वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमारी जो पॉलिटी है वो है फेडरल पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दुनिया की गवर्नमेंट्स को दो तरह तकसीम किया, एक को वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट एंड अनदर इज नोन एज यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज बेसिकली, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिया हैज द फेडरल dual polity और फेडरलिज्म इज देयर इन इंडिया। तो फेडरल पॉलिटी में क्या होता है, देयर इज द नेशनल गवर्नमेंट और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिन्हें हम कहते हैं, या जिन्हें हम रीजनल गवर्नमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो एज फॉर एज द एग्जीक्यूटिव इज कंसर्न्ड, देखिए फेडरलिज्म में आपके पास देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है नेशनल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट, यू कैन टर्म नेशनल गवर्नमेंट एज यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट, या आप इसे कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे हम इंडिया में आमतौर पर ये वर्ड्स यूज करते हैं। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और इसी तरीके से रीजनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। So on the basis of the nature of relationship between the national government and the state government, or the union government or the provincial government, या central government or regional government, political scientists have divided the governments into two, federal government or unitary government, ठीक है। फेडरल, तो यूनिटरी गवर्नमेंट, देखिए फेडरल गवर्नमेंट कहां पे होती है, जहां पे वायरिन देयर इज द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और यूनिटरी गवर्नमेंट कहां पे हमें देखने को मिलती है, वायरिन ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वायरिन ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे&के, हाँ। तो एज फार एज द इलेक्टोरल कॉलेज इज कंसर्न्ड, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। व्हेन आई से बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इट मींस बोथ, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। लेकिन माय डियर्स, in our legislatures there are two types of members, we usually see two types of members, एक होते हैं nominated members, दूसरे होते हैं elected members। For example, in legislative, in Lok Sabha, we used to have we used to have two Anglo-Indian community members who were basically nominated to the Lok Sabha,
and in Rajya Sabha we have 12 nominated members who are basically having specialization in arts, science, sports and who have contributed in social services. तो लेकिन यहाँ पे मैं आई वांट टू मेक एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, जो लोकसभा में वी वर हैविंग 2 nominated members in the Lok Sabha from Anglo-Indian community, but that was discontinued by the Indian Parliament by 104th Constitutional Amendment 2020. ठीक है, Indian Parliament discontinued that nomination. Now from 2020 we do not have any nomination from the Anglo-Indian community in our Lok Sabha, though in Rajya Sabha में जो nominated members हैं that continues. तो elected members of both the houses of parliament, जिनको हम कहते हैं MPs, who are basically the members of Lok Sabha or Rajya Sabha, और इसी तरीके से elected members of state legislative assemblies. Mind you, we have almost 28 states in India and each state has its own state legislative assembly, जिसे हम कहते हैं lower house of the state और lower house of the state legislature और विधान सभा. तो वहां के भी जो elected members है वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं. इसी तरीके से we have legislative assemblies in 3 UTs, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, एंड we have rest of the UTs, rest 5 UTs are without legislature. ठीक है, तो जहां जहां UTs में legislative assemblies है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, J&K में है, वहां के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो भी they are also entitled to vote in the election of the president. तो यहां पे आपको क्या मालूम चला, Since elected members of both the houses of parliament, यहाँ पे exclude कौन हो गए? Nominated members of both the houses of parliament. They are not entitled to vote in the president selection. इसी तरीके से elected members of state legislative assemblies, यहाँ पे भी in state legislative assemblies we have a procedure of nomination of members. ठीक है, in legislative assemblies, as in Jammu and Kashmir till 2019 we used to have 2 nominated women in the state legislative assembly of Jammu and Kashmir. ठीक है, तो वो भी यहाँ पे so nominated members are also excluded. और यहाँ पे अगर आप देखोगे in almost 6 states we have bicameral legislature. Bicameral legislature in the sense we have legislative council and legislative assembly. ठीक है, विधान परिषद, विधान सभा, अपर हाउस, लोअर हाउस. तो the members of legislative council are also excluded. ठीक है, और इसी तरीके से जो जहां जहां यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे भी अगर प्रोविजन होगा नॉमिनेटेड मेंबर्स का, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी एक्सक्लूड है. ठीक है, तो नाउ लेट अस सी हाउ दे वोट. हाउ सिंस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, एंड द इलेक्टोरल system we use is proportional representation by means of single transferable vote. एंड इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में बेसिकली वोटर्स क्या करते हैं, हाँ यहां पे वोटर्स कौन है, एक है एमपीज और एमएलएज. ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, लेकिन इलेक्टेड. ठीक है, इसी तरीके से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो ये यहां पे वोटर्स है. लेकिन हाउ डू दे कास्ट देयर वोट, यहां पे अंडर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इनको प्रेफरेंसेस देनी पड़ती है. ठीक है, preferences, they have to indicate their preferences. For example, अगर 3 candidates, if there are 3 candidates contesting the president selection, for example A, B, C, a voter who is here either an MP or an MLA, उसको he has to indicate, for example he wants B a president. ठीक है, 1. तो इसके बाद उसको प्रेफरेंस भी देनी पड़ती है. अगर B नहीं होगा तो कौन होगा, फॉर एग्जाम्पल A को वो देगा, इसी तरीके से C को वो 3 देगा. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, कोटा डिराइव किया जाता है. कोटा कैसे हम डिराइव करते हैं, वी यूज द मैथमेटिकल फॉर्मूला. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स to be elected
+1 और +1, ठीक है, ये है, दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला wherein with which we can derive a quota, और quota में when the votes are counted in the first phase, first preferences are counted, and if no candidate is able to arrive at a quota, तो उसके बाद क्या होगा, the candidate who secures the least of the first preferences, he is eliminated and his second preferences are transferred to others, ठीक है, और इसी तरीके से this process continues unless we reach a quota, and once a particular candidate gets the quota and he is declared winner, ठीक है. So this is all about election of the president. अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड if there is a process through which we can remove the president, which is known as impeachment, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. So this was all about. So today आज हमने क्या डिस्कस किया है, एक तो हमने पढ़ा है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. उसके बाद मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स है. फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू दैट in Germany the head of the government is known as chancellor, ठीक है. in Japan the head of the state is known as emperor, ठीक है. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में हम हेड ऑफ द स्टेट को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. तो देन वी केम टू नो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वायर इन आई हैव टोल्ड यू कि इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. इलेक्टोरल सिस्टम जो यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और the people who vote in the president's election they are collectively called electoral college, और electoral college में कौन कौन से मेंबर्स हैं वो भी हमने elaborately डिस्कस किए हैं, और उनमें से कौन कौन एक्सक्लूड होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा नॉमिनेटेड मेंबर्स या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वो एक्सक्लूड है, वो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. सो ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है. So thank you so much.